एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਪੰਡਿਤ ਗਿਆਨਚੰਦ ਪੁੰਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਮਰਨ ਪੈਲੇਸ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੋਹਾਰਾ ਨਹਿਰ ਪੁਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਡਿਤ ਗਿਆਨਚੰਦ ਪੁੰਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਘੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਗਵੰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਨ 1923 ਵਿੱਚ ਲੋਹਾਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਆਣ ਪਈਆਂ। ਪੰਡਿਤ ਗਿਆਨਚੰਦ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਪੰਡਿਤ ਗਿਆਨਚੰਦ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਹਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਸਨ 1978-79 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ। ਪੰਡਿਤ ਗਿਆਨਚੰਦ ਪੁੰਜ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹਾਰਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਆਣਾ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਗਰਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਮਲ ਚੰਦ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਗਿਆਨਚੰਦ ਪੁੰਜ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਡਿਤ ਗਿਆਨਚੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੇਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਗਿਆਨਚੰਦ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
विजयी राजा पर श्रद्धा सुमन चढ़ाते वैसे ही विजयी राजा पर श्रद्धा सुमन चढ़ाते बालपने में पिता पुत्र को कांदा देव दुलारे हो, कांदा देकर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो, कांधा देकर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो। रहे पिता का ध्यान पुत्र पर कोई आँच न आवे हो, सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो, सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। माटी की ये काया जब मरघट पे आने वाली हो, राजा हो या रंग सभी की एक दशा हो जावे हो, राजा हो या रंग सभी की एक दशा हो जावे हो। जीने वाला जाने वाले की सुनिया बिसरावे हो, जो है जितना मोह से उतना मोह दिखावे हो, जो है जितना मोह से उतना मोह दिखावे हो। शोक सभा में उपस्थित ऋषिधारी भाई बंधु, आगंतुक माननीय व्यक्ति, ग्राम के समस्त सदस्यगण, आज हम शोक सभा में एकत्रित हुए दिवंगत आत्मा आदरणीय सम्मानीय पूज्य वैष्णव वयोवृद्ध ज्ञानचंद जी महाराज, जिनकी आयु 93 वर्ष व्यतीत हो गए थे, 94वां वर्ष चल रहा था। अपनी आध्यात्मिक और हर प्रकार के कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर आज भौतिक शरीर को छोड़कर वे प्राणी 5 तत्वों में विलीन हो गए हैं। उनके निमित्त रखे गए गुरु प्राण के भोग के लिए हम सब
जिन्होंने श्रवण पुत्र बनकर अपने पूज्य पिताजी की बड़े ही भाव से जिनकी सेवा की, ऐसे धर्मात्मा पुत्र होते हैं। देवता लोग भी उनकी आशीर्वाद चाहते हैं, शुभकामनाओं के साथ देवता भी फूल बरसाते हैं। धर्मात्मा है ऐसे पुत्र के ऊपर पूर्वज भी आशीर्वाद देते हैं, जिन्होंने अपने पूज्य पिताजी को देवता की भांति उनकी पूजा की। ये शरीर किसी का पिता बना, किसी का पुत्र बना और किसी का दादा बना, किसी का बाबा बना। शरीर जब जन्म लेता है तो नाना प्रकार के संबंध को जोड़ लेता है। जब कर्मों की गति समाप्त हो जाती है, ये शरीर के नाते सब छूट जाया करते हैं। 93 वर्ष की आयु में हमारा समस्त परिवार चलता है कि जिसने धर्म को कर्म बनाया, कर्म को धर्म बनाया, हर कर्म को सजग बना के अपने जीवन की लीला को मंगल में बनाया। जो प्रातः काल उषा काल में उठने वाले हर कर्म को लौह पुरुष जिसे मानते हैं, कर्म को हुए जिसने अपनी पूजा समझी, ऐसे महान पुरुषों के चरणों में हम दंडवत करना चाहते हैं। ये शरीर मैं हूँ 16 अध्यायों के अंतर्गत आदरणीय पूज्य पंडित जी ने कई दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ किया। कर्म हमारा कैसा होना चाहिए? भगवान कहते हैं जो हम कर्म करते हैं, जैसा कर्म करते हैं, उस कर्म का फल ही हमें भोगना पड़ता है। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि धर्म हमारा सत्यमय होना चाहिए, हमारा बोलना भी सत्य हो, चलना भी सत्य हो और हमारा हर व्यवहार सत्यमय होना चाहिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर इस जीवन में कोई भी धर्म नहीं। मैं किसी का अहित ना सोचूं, सभी का भला सोचूं। गुरबाणी का लेख है कि सभी लोग सुखी रहें, सर्वत्र का भला मांगते हैं। सभी लोग सुखी रहें, सभी तंदुरुस्त रहें, निरोग रहें। मैं किसी का कैसे भला कर सकूं, ऐसा मन में भाव सदैव होना चाहिए। ऐसा कर्म मैं कभी न करूंगा जिसके करने से किसी को दुख प्राप्त हो। कबीर जी ने लिखा है कि दिल ना दुखा किसी का आहें मार लेती है, दिल ना दुखा किसी का आहें मार लेती है, दुआ गए सब की दुआएं तार देती है। इसलिए 16 अध्यायों के अंतर्गत गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न पूछे कि इस कर्म के करने से हमें कौन कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं, कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिसे सदगति प्राप्त होती है, कौन से ऐसे बुरे कर्म होते हैं जिसे दुर्गति प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं विष्णु जी, हे गरुड़, मैं किसी को न दुख देता हूँ न मैं सुख देता हूँ। प्राणी अपने कर्मों से ही दुख प्राप्त करता है और सुख भी अपने कर्मों से ही प्राप्त करता है। ये शरीर कभी ज्ञानचंद जी हुए, ये शरीर किसी का मित्र बना, भाई बना, बंधु बना। मैं शरीर हूँ जब हम ये समझ लेते हैं। जब मैं शरीर हूँ, वृद्ध अवस्था में हमारी आंखें बंद हो जाती, अंधी हो जाती है और शरीर के द्वारा हम उस आंखों को क्यों नहीं बचा लेते। अगर मैं शरीर हूँ जिसे हम बड़े बड़े अच्छी पदार्थों से पाला है, वृद्धावस्था में ये टांगे हमारे लड़खड़ाने लग जाती हैं, इसे हम क्यों नहीं बचा लेते। जीवन हमारा निर्भर हो जाता है, वृद्ध अवस्था में रोगों से ग्रस्त हो जाता है। अगर मैं शरीर हूँ
इसको मृत्यु से हम क्यों नहीं बचा लेंगे। दिन रात शरीर में किसी प्रकार क्षति होती है, हम रोग चिकित्सा करते हैं। रोग हमारे दवाई हमारे रोग का निवारण है, परंतु मृत्यु के भय से ना हम बच सकेंगे, ना कोई हमें बचा सकेगा। शास्त्रों में लिखा है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। हराया वृक्षत को श्राप लगा कि आज के 7वें दिन के बाद तक्षक नाग आपको दस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। मैं शरीर हूं, मैं मर जाऊंगा, इस मृत्यु के भय के हमारे मन में चले गए कि मृत्यु का कोई मुझे समाधान बता दे। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े गुरुजन, ऋषि मुनि, वशिष्ठ, पुलस्त्य, अंगिरस, अत्रि ऋषि, किसी ने कहा कि 7वां दिन कोई अनुष्ठान करेंगे आपकी मृत्यु से हम बचा सकते हैं। किसने 9 दिन का, किसने 1.25 महीने का ऐसा उपाय बताया। राजा परीक्षित ने कहा मैं 9 दिन नहीं, 1.25 महीना नहीं, केवल मात्र आधा दिन व्यतीत हो गया और 7 दिन बकाया रह गई। हे ऋषियों, मेरा समय व्यतीत वेस्ट न करें, केवल मात्र मुझे ये बताएं कोई मृत्यु के भय से बचा सकता। केवल मात्र 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज ने दोनों हाथ खड़े करके ऐसे संत महात्मा हमारे भारतवर्ष में। राजन, मैं आपकी मृत्यु से बचा नहीं सकता, परंतु मैं आपको वहां ले जाऊंगा जहां मृत्यु आ नहीं सकता। क्यों? तुम अपने शरीर को मैं मानते हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर एक ना एक दिन तो मर जाएगा, परंतु आपकी अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरेगा। आत्मा अजर और अमर है। जैसे व्यक्ति अपने मलिन कपड़ों को उतार कर नए कपड़े डाल देता है, इसी प्रकार है वजन। ये शरीर पुराना हो जाता है, नया शरीर प्रवेश कर लेती है आत्मा। जन्म जन्मांतरों के बाद भी ये आत्मा अजर और अमर होती है, न गलती है, न सड़ती है, न उसे जला सकता है, न मरती। इस आत्मा के द्वारा हम अपने शरीर को कर्मों के, अच्छे कर्मों के द्वारा हम सर्वगति को प्राप्त होता है। लिखा है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शिवशो नाक्षीयन्ते कर्म कल्प कोटि शरीर। कितने भी कल्प व्यतीत हो जाएं, कितने युग व्यतीत हो जाएं, हमारे किए हुए कर्म बिना भोगे हुए नष्ट नहीं होते। भीष्म पितामह जी बाणों के सरशैया पर पड़े हुए गोविंद का ध्यान करते हुए कौन सा ऐसा कर्म किया है जो आज मुझे बाणों की सरशैया में गोविंद कहते हैं कि भीष्म, ये एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, पता नहीं कौन सा ऐसा जन्म का फल है जो आपको हो। भीष्म जी कहते हैं कि जन्म से लेकर अब तक मैं पांडवों और कौरवों को समझाता हुआ आया हूं कि मैंने जीवन में अपने सामने कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं। भगवान कहते हैं कि कर्मों की गति बड़ी न्यारी होती है, बिना भोगे हुए कर्म हमारे कभी नष्ट नहीं होते। सुन भरत भावे प्रबल बिलख गयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विनेहा। इस संसार का हर प्राणी चाहता है कि हे परमेश्वर, मुझे लाभ मिले, हानि कभी ना मिले। मैं जीना चाहता हूं, मरना नहीं चाहता। अरे तुझे महाराज
जीवन में मेरा अपयश कभी न हो, यश सदैव मिले, हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश प्रकृति के अधीन हुआ करता है। कभी कभी अच्छे कर्म करते हुए हमें अपयश भी हो सकता है। व्यापार के लिए हम धन खर्च करते हैं, हानि भी उठानी पड़ सकती है। ये समस्त लाभ हानि जीवन मरण अपयश अपयश विधि के हाथ प्रकृति के अधीन हुआ करता है। कौआ कहता है परमेश्वर कभी भी रात ना हो, क्योंकि कौए को रात को दिखाई नहीं देता। उल्लू कहता है प्रवेश कभी दिन ना हो, कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। उल्लू के कहने से और कौए के कहने से कभी दिन और रात बदलते हैं। प्रकृति अपने जीवन में कभी भी नियमों को बदलती नहीं है, उसके नियम अटल हुआ करते हैं। इसलिए जीवन पर्यंत ये सोचना चाहिए मेरा कर्म सत्य हो, ऐसा कर्म करो जिसका सभी का हित हो। दुनिया में एक व्यक्ति है, हम चाहते हैं परमेश्वर हमें सुख मिले। श्री गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकेंगे, प्रार्थना करें, वाहिगुरु जी परमात्मा मुझे सुखी देना, मेरे बच्चों को सुखी करना, मेरे घर में शांति देना। मंदिर में जाएंगे यही प्रार्थना करेंगे, ये सच्चिदानंद स्वरूप मेरा जीवन सुख समृद्धि से युक्त बने। पांडवों की माता कुंती माता ने कभी ये सुख नहीं मांगा, केवल माता दुख मांगा। क्यों? भगवान कहते हैं कि जीवन पर्यंत आपने दुख भोगे, कि आप सुख लेने की बारी है तो सुख को क्यों दूर करते हैं? माता कुंती ने उत्तर दिया, सुख के माथे सिर पड़े, जो हर हृदय से जाए, बलिहारे बा दुख के, जो पल पल नाम जपा। ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूंगी? जो भाई का भजन शुरू करें। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान के भजन को भूल जाना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए जितना आयु हमें प्राप्त हुई है, हम करते ही क्या है? उस आयु के द्वारा हमारा निर्णय ये होना चाहिए, मानव शरीर 84 लाख जोनियों में भटका हुआ ये मानव शरीर होता है। मानव शरीर में ही हम लोगों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, किसी अन्य जोनियों में प्राप्त नहीं होता। इसलिए शास्त्र में ये बार बार कहा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। माता पिता को साक्षात देवता मानकर, परमात्मा मानकर उसकी अर्चना सेवा पूजा करनी चाहिए। इसलिए जीवन में हम सुखों की ओर दौड़ते हैं। सुख भी हमारे कर्मों की कृपा होती है, दुख भी हमारे कर्मों से प्राप्त होता है। इस जीवन में सुख क्या है, दुख अनुभव की बातें होती है। सुख होते हैं तो दुख का अनुभव होता है, सुख आएगा तो दुख भी जरूर आएगा। दिन होगी तो रात भी जरूर होगी। और हर प्राणी के अंदर भावना से जागृत हो जानी चाहिए कि सुख और दुख से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। सुख भी मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ो मैं किसे भगवन, ये दोनों तुम्हारे।
चाहे कोई ना, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे कोई ना, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं,
इस सभा में वीरेंद्र खैरा जी बैठे हैं, दीपक जी पजामा हेडों से बैठे हैं। पिता की महत्ता क्या होती है? पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता अंगुली फड़े बच्चों का सहारा होता है। पिता कभी खट्टा कुछ खारा होता है। पिता परिवार का पालन है, पोषण है और गांव से चलने वाला प्रशासन भी है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बहुत बड़ा आसमान होता है। पिता अप्रदर्शित अनंत त्याग होता है। पिता है तो बच्चों को इंतजार होता है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने होते हैं और पिता से ही परिवार के सब खिलौने अपने होते हैं। पिता से ही माँ की सुहाग और बिंदी है। पिता एक जीवन को जीवन का दान होता है। पिता ही तो सुरक्षा है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ हो जाया है। माँ बाप से बढ़कर अपना नाम करो, उनका अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप के प्यार को कोई बांट नहीं सकता। ईश्वरी उनकी आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में समस्त देवताओं का स्थान अगर पूजा है, माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में समस्त तीर्थ यात्राएं व्यर्थ होती हैं बेटे के होते हुए माँ बाप यदि असमर्थ होते हैं। खुश नसीब होते हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं। माँ बाप की आशीषों के हजारों हाथ उनके साथ होते हैं। इसलिए जीवन पर्यंत जब माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं और ऐसा अनुभव होता है कि बहुत सी शक्ति हमारे इस दुनिया से चली गई और माता पिता कभी जाने के बाद किसी को फोन आता है कि पुत्र तुम कैसे हो। इसलिए जितने भी नाते इस दुनिया में हैं वो जब तक जीते हैं तब तक माता पिता रिश्तेदार भाई बंधु का नाता बना रहता है। इस दुनिया में समस्त नाते छूट जाएं, परंतु जब माता पिता का नाता टूटता है तो ऐसा लगता है कि दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति हमसे दूर हो गई। किसी कवि ने लिखा है, अंजला तो रोग पुराने अज दे नहीं, तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लब दे नहीं। हजारों दिन रात हम रोते रहे, गया हुआ प्राणी इस दुनिया से वापस नहीं आ जाता। कभी भी केवल मात्र यादें रह जाती है। जिस पिता की गोद में बैठकर हम आशीर्वाद लिए, बड़े हुए, अच्छे संस्कार दिए, आदरणीय ज्ञानचंद जी ने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए। देश हित और राष्ट्र हित कैसे होना चाहिए, परिवार की समृद्धि कैसे होनी चाहिए, इन बागवान बनकर उस परिवार को सींचा है। जब वो चले जाते हैं तो महसूस होता है कि दुनिया में सब कुछ लूट गया। पुत्र कितना भी नालायक हो जाए, माँ बाप कहते मेरे पुत्र वर्ग ऐसे दुनिया में बच्चा नहीं। पुत्र पावे लख जहान तो मंदे ने, पर माँ प्यो आखण सारे जगतों चंगे ने। पुत्र पावे लख जहान तो मंदे ने, माँ प्यो आखण सारे जगतों चंगे ने। हो पुत्र खातर गैर दे पिछे लगदे नहीं, तुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं।
सब तो ऊंचियां संगतां यारो बाप दियां चीले सदके ओ बनदियां किस्मतां आप दियां बावला वर्गे ओ बावला वर्गे इंज सहारे लभदे नहीं तुर चावण जद पाप ते मुड़ के लभदे नहीं पाप मरे ते सारे हौसले ते जावण पुत्र तियां विच मुसीबतां पै जावण लोग पराए कदे भी नेड़े लगदे नहीं तुर चावण जद पाप ते मुड़ के लभदे नहीं अपनी औलाद दी गल नूं सह जांदे होर भी होइयां दिल दियां दिल विच ले आंदे किसे भी दुख तो बच्चियां कोलों भजदे नहीं तुर चावण जद पाप ते मुड़ के लभदे नहीं बाप मरण ते बेड़े सुंजे हो जावण ओ जांदे जांदे खुले बूहे ढो जावण कदे भी किसे नू बाप गवाचे लभदे नहीं तुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं ना फिर सारे जग विच जाके देख लवो नजरां दे विच नजरां पाके वेख लवो बावला वर्गे इंज दुलारे लभदे नहीं तुर चावण जद पाप ते मुड़ के लभदे नहीं तुर चावण जद पाप ते मुड़ के लभदे नहीं कहाँ चले जाते हैं ऐसे लोग मरने के बाद और जन्म लेने से पहले हम कहाँ होते हैं इसलिए जब माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं किसी का कोई फोन नहीं आता किसी का संदेशा नहीं आता पुत्र तुम कैसे हो इसलिए दुनिया के नाते जब तक ही जीते जी होते हैं जाने के बाद शमशान भूमि में तिनका तोड़कर हम दूर चले जाते हैं तोड़ के चले जाते हैं आज के बाद हमारा और आपका नाता छूट गया ना का संदेश ना कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा समाचार आता है एक आह बरी होगी हमने न सुनी होगी जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी उस वक्त का ये है गुम उस वक्त कहाँ थे हम कहाँ तुम चले गए कहाँ तुम चले गए गए हुए प्राणी के लिए सद्भावना प्रकट करते हैं कि गए हुए प्राणी जहां भी जाएं सुखी रहें और परिवार को आशीर्वाद दें
इस प्रकार जितनी सेवा बच्चों ने की, प्रार्थना करें कि सेवा करते समय कभी किसी प्रकार कोई भूल हो जाए, कई वचनों से या सेवा में, ये परमेश्वर कृपा करना। मेरे पूज्य पिताजी स्वर्ग में जाकर मुझे आशीर्वाद दें। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे अवगुणों को ना देखना, मेरे ऊपर आशीर्वाद देना। भले ही आप शरीर में नहीं हैं, आशीर्वाद रूपी आपके हाथ मुझ पर सदैव बने रहे। जय श्री कृष्ण। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1929-30 ਦੇ ਆਪਣੇ 29-30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਮਾਘੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਪਿਛੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਠ, ਵਫਾਦਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਧਾਕੜ ਵਰਕਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲੇਖੇ ਲਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਦਰਪਾਲ ਪਾਂਡੇ, ਬੈਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ MLA, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਏ। ਜਿੱਕਾ ਪਿੰਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਬਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੂਗੀ, ਲਹਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਗੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੱਖਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ ਲਹਰਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸ਼ੀਰਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਗਏ। ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਬਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਸੀ, ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਟੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੱਕਰਨਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਆਤਮਨਗਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣਾ ਸੇ ਛੱਡੀ ਹੈ
जो हुई साबित पंडित जी को अपने परमात्मा चरना विश्वास बख्शे, पिछड़े परिवार को पालन का बल बख्शे। इस सत्य में मैं अज वचन देना कि पंडित जी का कोई भी व्यक्ति इन्हों के परिवार तो बिना भी इन्हों का नाम भी मेरे आके कन्न भी लै लिया करो। पहले आधार पर मेरे काम करूँ, परिवार के नाल सदा मोढे नाल मोढा ला के करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। हुण मैं अपने इत्थे हाज़री लवा चुके सरदार हीरा सिंह जी गावड़िया एक्स मिनिस्टर हुणे इतों गए ने, उन्होंने को समा नहीं सी। हुण मैं सरदार मलकीत सिंह जी डाका उन्होंने बेनती करूँगा कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इन्हां नाल इस परिवार नाल पंडित जी नाल बहुत ज़्यादा प्यार है। सरदार मलकीत सिंह जी डाका आप सारे अपने बहुत ही सत्कारयोग बुजुर्ग पंडित ज्ञान चंद जी की अंतिम अरदास में उन्होंने श्रद्धा से सत्कार भेंट करने वास्ते परिवार साझा करने वास्ते हाजिर हुए। जिंदगी के मौत के संबंध में पूज्य पंडित जी ने गुरु पुराण की कथा करके परिवार को संगतां को ढाल देने का यत्न किया है। पंडित ज्ञान जी बारे बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ किया जा सकता है। मेरा भी उन्होंने नाल बड़ा पुराना गहरा से गूढ़ा संबंध है। मैं 1965 में थे अपने पिंड बिलासपुर तो लुधियाने आके जदों काम करना शुरू किया तो इन्हों की चाह की दुकान होती सी। इन्हों का पुत्रा समान भतीजा देव जिहड़ा कि मेरा मित्र सी, और उस समय मैं सुनता सी कि पंडित ज्ञान चंद जी बहुत पुराने कांग्रेस के आगू ने, बड़े झड़क जरनैल ने, सच को सच झूठ को झूठ कहने की जरूरत रखते हैं। और इस समय उस समय इन्हों का सारा परिवार जो कलकत्ता सिंह यूनिवर्सिटी के सामने इन्हों के घर होंगे सन। तोड़ी की टाल होती सी, शुरू तो ही पशुओं का काम करते सी, दुध का काम करते सी। इन्हों के भराओ प्रकाश जी, बनवारी लाल जी जिहड़े फौज में सन, और देशभक्ति का जज्बा, सेवा की भावना की पूर्ति जी है वो इन्हों में फुट फुट के भरी हुई थी। और कांग्रेस पार्टी में रह के कदे कांग्रेस पार्टी के लीडरों तो इन्होंने कदे कोई पदवी पोजीशन जी वो गमन का यत्न नहीं किया। हमेशा कांग्रेस पार्टी के वर्करों की खातर भावें बड़े तो बड़ा लीडर हो, मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उन्होंने ये गल कहते सन कि वर्कर का राइट है, हक बनता है, इन्हों का काम आपने जोड़ी करना और करा के हटते थे। और वो अज भावें लोहारा नगर जो लुधियाने शहर की बुकल बसया हुआ एक पिंड सी, अज वो शहर का हिस्सा बन चुके हैं, कारपोरेशन का वार्ड बन चुके हैं। इस नगर के सरपंच रहे और उन्होंने अपने पिंड का कोई भी केस थाने कोर्ट कचहरी नहीं जान दिता। वो पंचायती फैसले कराने के इतने महार सी कि जिन्हों कोई गलती की होती थी उन्होंने कह देते थे कि तुहाडी गलती है, तुहानूं गलती मननी पेगी। और उस समय गलती मन भी जाते थे। अज तक कोई गलती मनने को तैयार नहीं। गलती करके अगला समझा कि मैं तो बिल्कुल सच्चा, मैं क्यों गलती करना। लेकिन उन्होंने लीडर का प्रभाव ही इन्ना होता सी, दबदबा इन्ना होता सी, सब तेज इन्ना होता सी। और 92-93 साल की उम्र में साढ़े को गए ने। उस तो बाद 1992 में मैंने इलेक्शन लड़ने का मौका लग्या। उस वे लहारा नगर जो बाकी हल्के में सी, अज भावें जी हल्काबंदी हुई है साउथ में आ गया। और उस दिन को लैके अब तक इन्होंने कदे भी कोई हुक्म किया भावें पिंड की विकरी और बहबूदी वास्ते, कांग्रेस पार्टी के किसी वर्कर वास्ते और साझे कामों वास्ते, दास में इस गल का मान हासिल है
कि असीं उन्हां दे कीते हुकम ते हमेशा और चढ़ाए ते चढ़ाउंदे रहांगे। उन्हां दे 4 धीआं 4 सपुत्तर और जिहड़ा सारा परिवार है, पंडित ज्ञान चंद जी ने सारे अपने धीजे भतीजियां नूं, अपने धीआं पुत्तरां नूं, सारिਆਂ ਨੂੰ अपने धीआं पुत्तर समझ के इत्थे हुणे स्टेज सकੱਤਰ ਸਾਹਿਬ गल कर रहे थे कि उन्होंने पढ़ाया पालिया, वधिया कामकार जिहड़े ने सैट करके दिते और इहो जिहा इंसान जिहड़ा अज के युग में सानूं कहना बड़ा मुश्किल है। सो उन्होंने जानता जिथे उन्होंने समੁੱਚੇ परिवार को कांग्रेस पार्टी को एक नाम पूरा होना घाटा पिया है, उत्थे मैं महसूस करदा कि मैनूं भी उन्होंने जान का निजी तौर पर घाटा पिया है। तो मैं भी सारी संगत के राह रल के परिवार के दुख में शरीक होंदा होया अपने परिवार को अपनी कांग्रेस पार्टी को पंडित ज्ञान चंद जी को अपनी श्रद्धा के सत्कार भेंट करदा आप सारे ने रल के अरदास बेनती की है सच्चे पातशाह उन्होंने अपने चरणों में निवास बख्शे, पिछे परिवार को सानूं सारिआं नूं भाणा मन दा बल बख्शे। बहुत बहुत धन्यवाद। ਹੁਣ मैं माफ़ी चाहना श्री अशोक कुमार जी पप्पी शाहपुरिया करके जिन्हों का नाम लेने सारे MLA ने लुधियाने के, इन्हों को माफ़ी चाहना। इन्हों का भी बहुत प्यार सी, अक्सर पंडित जी को आके बैठा करते सी। उन्होंने पुराना इतिहास सारा जिहड़ा इन्हों के परिवार नाल, इन्हों के फादर साहब नाल, सारी फैमिली नाल इन्हों का बहुत ज़्यादा प्यार सी पंडित जी का। मैं समय की घाट करके श्री पप्पी शाहपुरिया जी को माफ़ी चाहना। हुण मैं बेनती करना सरदार के बाबा जी जिन्हों के नाल, क्योंकि कांग्रेस के प्रधान सी, ये भी एक सिपा सरदार कांग्रेस के रहे। पंडित जी शहर के उस टाइम बड़ी मजबूत कांग्रेस खड़ी की सी इन्होंने शहर के अंदर। जो इन्हों की प्रधानगी के टाइम मैं के बाबा जी को जिन्होंने हमेशा सानू प्यार दिता, सत्कार दिता, आशीर्वाद दिता, अज साडे विच नहीं रहे। उन्होंने जानता जिथे परिवार को घट है, कांग्रेस पार्टी को घट है, समाज को घट है, दोस्तों मित्रों की दुनिया में बड़ा घट है। क्योंकि सच को सच कहना ही अज के समाज मुश्किल है। तो ये वो नेता सन जिन्हों के अंदर एक दृढ़ता सी, एक विश्वास सी, ते सच की तकड़ी तोड़ना बहुत बड़ी गल। हमेशा उन्होंने गल दे विच जिहड़ा कड़ाका सी वो एक सच की आवाज़ सी। अज मैं समझदा कि कांग्रेस पार्टी के पिलर की तरह सन, थंब सन। तो जिस तरह सिद्धू साहब बोल के गए थे, उन्हें बेटा दस रहा सी कि गावड़िया साहब भी उन्होंने दृढ़ता का मानते सी कि एक वो नेता है। इस गल तो ही होती है। मैं समझदा उन्होंने अंदर इंद्रजीत शर्मा जी बैठे ने, चोपड़ा जी जो भी गल करते थे सरपंच साहब की सेहत की गल, चढ़ती कला की गल, ये मैं समझदा कि साडे वो गांधीवादी नेता जिन्हों की सोच, जिन्हों की विचारधारा, जिन्हों के शब्द हमेशा साडे गल्लां गूंजदे रहणगे। ते अज दे कई कांग्रेसी का गांधी के वोटां वाले घूमी जाते हैं, ये उन्हें जिहड़े गांधी की विचारधारा के वाले घूमण वाले लोग सन। अज असली कांग्रेसी जिन्हों के अंदर देशभक्ति होवे, देश प्यार होवे, समाज की सेवा की भावना होवे, ते वो लोग जिन्होंने मैं समझदा क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी लई बड़ा रोल अदा किया, पंजाब की शांति लई मरहूम मुख्यमंत्री बेअंत सिंह उन्होंने अपनी जान की आहुति दी। अज जे पंजाब के विकास की गल करिए, शांति की गल करिए तो कांग्रेस के हिस्से आते। तो वो क्यों आता कि पंडित ज्ञान चंद जी वर्गे वो ठोस नेता, वो मजबूत नेता, वो एक दृढ़ इरादे ने नेता, एक अच्छी सच्ची सुच्ची सोच रखने वाले नेता। अज के नेतावां थोड़ा जिहा अपने अंदर झाती मारन की लोड़ है। अज ज्ञान चंद जी के जीवन तो ज्ञान लैण की लोड़ है, उन्होंने सोच को अपने हिरदे अंदर बिठाने की लोड़ है। क्योंकि मैं समझदा कि कांग्रेस भी
एक दे तां बाहर कांग्रेस है, एक दे अंदर कांग्रेस है। ये अंदर कांग्रेस वाले ज्ञानचंद सन जिन्हां दी सोच कांग्रेस सी, ਜਿਹੜੇ उस विचारधारा ते पै, क्योंकि किसी भी पार्टी दे विच होना ਉਹਦੀ विचारधारा ते पहला देना होंदा। ज्ञानचंद जी वो विचारधारा ते पहला देने वाले लोग सन। सारे लोग आज देख रहे हैं पांडे साहब पप्पी जी बैठे ने, मतलब परिवारक संबंध इन्हां दे नाल ये जिहड़े रिश्ते बनते ने एवें नहीं बनते, उन्हां दी सच्चाई नूं रिश्ते बने किते ना किते कमियां होंदियां ने तो फिर जरूर गड़बड़ होती है पार्टियां की। अज मैं समझदा ज्ञानचंद जी ने जिस बंदे का भी जिंदगी दे विच वाह पिया उहदा एक रिश्ता बनया तो उत्थे पार्टियां पूर्टियां दा गल्लां छोड़ियां ने, पर उन्हां दा ज्ञानचंद नाल एक बहुत बड़ा रिश्ता। ते पप्पी जी बैठे ने, ये भी चोणां भी लड़े ते उही गल्लां जिवें बुलारे इत्थों दस रहे सी, गल तां उस रिश्ते दी है। वो रिश्ता एक सच का रिश्ता सी। वो मैं समझदा अजिहे नेता साडे किते सदियां च पैदा होंदे ने जिहड़े एक सच का, एक दृढ़ता का, एक विश्वास का, नहीं तो इत्थे असीं देखदे हां साडे लोकां दा किस पासे नूं जा रहे हैं। तो अज मैं जिथे ज्ञानचंद जी के जाण दे नाल कांग्रेस पार्टी नूं, समाज नूं, परिवार नूं, दोस्तां मित्रां नूं वड्डा घाटा पिया। चोपड़ा जी वर्गियां शख्सियतां, इंद्रजीत जी वर्गे वो जिहड़े हमेशा उन्हां दे नाल साथी रहे, क्योंकि जद असीं इन्हां दे दर्शन करते हैं तो सच्ची सुच्ची वो कांग्रेस दिखाई देती। तो ये मैं समझदा ये वड्डियां गल्लां ने ते यही किसी भी पार्टी के पिलर थंब हुंदे ने। मैं अपने वालों, अपने परिवार वालों ਅਤੇ देश भगत यादगारी सोसाइटी पंजाब वालों वो पंजाब के महान सपूत, महान देश भगत ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। जय राम। मैं सॉरी बेनती करूँगा साढ़े नौजवान हरमन प्यारे MLA श्री अशोक कुमार पप्पी जी, कृपा करके जिन्ना उन्होंने बहुत ज़्यादा सत्कार सी, मैं पहला कह चुकिया सी कि माफ़ी चाहते हैं, पर ये कहते भी मैं जरूर बोलना है, मैं सॉरी मंगना इन्होंने। उस जब पितामा पंडित ज्ञानचंद की अंतिम अरदास के विच इकट्ठे होए हैं। मेरे तो पहला बोलते हुए जिन्होंने लंबा समा पंडित ज्ञानचंद का कटिया, साबका मंत्री सरदार मलकीत सिंह दाखा जी, के बाबा जी, उन्होंने जीवन बारे बहुत कुछ बड़े विस्तार में दसते गए। सही गल है बंदे जिहड़े आ वो अज के समाज के विच देखण लई बहुत घट मिलते हैं। पंडित ज्ञानचंद जिथे ज्ञाना की गुठली सी, उत्थे अपनी कहनी ते कतनी दे विच भी अटल सी। पंडित ज्ञानचंद बारे जिन्ने भी शब्द कहे जान वो घट ने। मैं पंडित ज्ञानचंद बारे कोई गल कहूँगा कि ऐसियां रूहां जदों समाज तो चले जांदियां ने, परिवार को भी बहुत बड़ा घाटा पैदा और समाज को भी बहुत बड़ा घाटा पैदा। मैं अपने वालों आम आदमी पार्टी का सिपाही होने के नाते हल्का सेंटर का मैं श्रद्धा सुमन भेंट करदा और परमात्मा के अरदास करदा कि सच्चे पातशाह पंडित ज्ञानचंद को अपने चरणों च स्थान बख्शी। पिछे जिहड़ा ये परिवार को एडा वड्डा घाटा पिया और समाज को घाटा पिया, इनू सहन की शक्ति बख्शी। मैं परिवार का मैंबर होने के नाते आई हुई सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करदा और प्रभु अगे अरदास करदा कि प्रभु इन्होंने अपने चरणों च स्थान बख्शी। जय श्री राम। माताओं भैनों बुजुर्गों के दोस्तों, मैं तो सारे दसा दिशावां को प्रणाम करता और बदले में थोड़े प्यार के आशीर्वाद मांगता। अज आप ऐसे सारे अपने पासों हमेशा नहीं पिछड़ गए। भाऊ ज्ञानचंद जी की पवित्र आत्मा अपनी श्रद्धा के अंतिम तिल फुल भेंट करने इकट्ठे होना बहुत ही दुखदायक मौका है। भावें ये गल सच है कि दुनिया गुजरगाह है ज्ञान का, भावें ये भी सच
से चलता है, तू गुनाह नहीं होगा ये ख्याल नहीं। पर फिर भी जो कोई अपना हमेशा की छड़ के चले जाता है तो उसकी मौत का दुख ते विछोड़े का दर्द बोल के या लिख के बयान नहीं किया जा सकता। मेरा ज्ञान प्रकाश जी का काफ़ी लंबे समय तो प्यार सी, उन्होंने बेटे पिता जी नाल भी मेरा बहुत प्यार है। काफ़ी लंबे समय तो मेरा इस परिवार का बहुत वास्ता है और इस परिवार में अपना परिवार समझना है। ज्ञान प्रकाश जी को मैं देखता रहा, मिलता रहा, मैं अपना कदों भी उम्र दराज मंग के देखना है। या पਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੀ ਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। मैं जो भी उम्र दराज मंग के देखना है या दिन ब दिन बढ़ रहे वृद्ध आश्रम की गिनती देखना है तो मेरे मन के एक ख्याल जरूर आता होता है कि असीं किते ना किते अपनी आने वाली संतान को कोई अच्छे संस्कार देने में भूल कर बैठे हैं। ये विषा समाज में अपने सारे चिंतन से चिंता का विषय नहीं, पर ज्ञान प्रकाश जी ने ज्ञान चंद जी ने अपने परिवार को अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए। उन्होंने मौत को 1.5 महीना पहला वो बीमार रहे थे तो मैं आता रहा उन्होंने तो मैं देखता रहा कि उन्होंने सारे परिवार ने उन्होंने बहुत अच्छे सुचजे ढंग उन्होंने दिते हुए संस्कारों के सदके उन्होंने सेवा की है। जिस तरह के कहते हैं कि मौत एक अटल सच्चाई है, इसनों हिम्मत हौसले से सबर नाल ही बर्दाश्त करना है। और इंसान को इसको बिना कोई चारा नहीं होता। मैं अपने वालों अपने परिवार वालों अपने सारे साथियों वालों उस परमात्मा के अरदास करता है कि हे परमात्मा उन्होंने पवित्र आत्मा को अपनी चरणों में निवास देना तो पिछले रह गए परिवार को रिश्तेदारों दोस्तों मित्रों को सारे सारे ये दुख बर्दाश्त करने की ताकत देना। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवतु। परिवार की ओर से अगंतुक मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि शुभ सभा में आप पधारेंगे और गई हुई आत्मा की सुख समृद्धि के लिए प्रभु चरणों में पास रहे आप सभी कामना करें। ओम शांति शांति शांति। मत कर तू अभिमान